जिस ते गुरु कृपा करे उस तो अपनी सेवा लैंदा है जी। क्योंकि यह गुरु घर का काम है तो ਇਹਦੀ सेवा बिक्रम सिंह जी ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲਈ ਲੰਗਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਆ। यहाँ पे मेरे पिताजी कर्नल भीम सिंह जी का क्रिमेशन हुआ था जी। तब से मैंने सोचा था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे करूँगा। कि ये जो है सरदार साहब को समर्पित मैं है हाँ जी उनकी यादगार में समर्पित है और इसीलिए मैंने एक ये फाउंडेशन भी चलाई है, कर्नल भीम सिंह फाउंडेशन। वो भी सोशल काम करती रहेगी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਟਵਾਣਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇਹੋ ਜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਵਾਕਈ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੀਂਦ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨਲ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ NGO ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਾਡਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਡਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਣਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲਈ ਲੰਗਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਆ। कितने टाइम बाद इसे पूरा कर लिया जाएगा जो ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ हुई है बिल्डिंग और मुझे लगता है कि इससे कम समय में जितने समय में अब ये बिल्डिंग बन गई है तो बाकी काम तो कोई रह नहीं गया अंदर का, तो जल्दी मुकम्मल हो जाएगी। जब गुरुद्वारा बन के तैयार हो जाएगा, एक बड़ा ऐतिहासिक गुरुद्वारा बनेगा, फिर यहाँ टोहाना के लोग जानना चाहेंगे क्योंकि बड़े बड़े सिख रथी किन किन के चरण पड़ेंगे? देखो सभी लोगों को आना चाहिए। यहाँ जत्थेदार भी आएंगे जो सारे हमारे तख्तों के जत्थेदार हैं और भी विद्वान लोग भी आएंगे और सभी को आना चाहिए, लोगों से चर्चा करनी चाहिए क्योंकि एक पिता एक इसके हम बारिक की बात है। हम एक ही पिता के पुत्र हैं सभी लोग। जो ये पंथ हमको अलग अलग नज़र आते हैं लेकिन रास्ता तो मंजिल तो एक ही है। तो सभी को मिलके चाहे हम अपना मीत हम सबको कीना हम सबना के साजन। हम ये प्यार की धरती है, प्यार का मार्ग है। इस पे चल के लोगों को प्यार के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए समझाने के लिए गुरबानी काम करेगी। गुरबानी भी जो है वो सभी ये सर्वधर्म ग्रंथ है
जी। इसमें 35 लेखक हैं, जिसमें 6 गुरु साहबान हैं, 3 जो हैं गुरु के सेवक हैं, बाकी 26 लोग सभी धर्मों के मानने वाले हैं। यहाँ कबीर भी है, यहाँ फरीद जी भी हैं, यहाँ परमानंद जी भी हैं, यहाँ रामानंद जी भी हैं। इस गुरु ग्रंथ साहब में तो सभी का है, ये सर्वधर्म ग्रंथ है। इसमें सभी का इज़्ज़त करना, सभी को सत्कार करना और उस अकाल पुरख की, उस प्रभु को जिसको हम अनेक नामों से याद करते हैं, उसकी प्रार्थना बंदगी करने का ढंग सिखाया गया है। सरकार में जो है सिख समुदाय की बात करिए आप, सरकार के सामने कैसी आप पहले कोई बात रख चुके हैं, या सरकार का योगदान क्या रहा है सिख समाज के लिए? सरकार का योगदान तो बहुत कम है, लेकिन असली काम तो सिख समुदाय का है, जिन्होंने भारत के लिए मुग़लों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने, गुरु साहिबान ने 239 साल तक 1469 से 1708 तक यहाँ नया जीवन जांच की। हमारा देश 1000 साल से गुलाम था और उसको दोबारा रिवाइव किया, कैसे फिर हम शस्त्र उठाएं, शास्त्र भी उठाएं। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने, गुरु अर्जन देव साहब ने शहीदी दी। और सभी लोग जानते हैं, कहते हैं कि तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू में साखा। और कहते हैं कि ना कहूँ अब की, ना कहूँ तब की, अगर ना होते तेग बहादुर सुन्नत होती सबकी। सो ऐसे गुरुओं का संदेश, ऐसे गुरुओं का उपदेश, जो हम उसको क्या दे सकते हैं? कौन सरकार क्यों दे सकती है किसी को ऐसी इसके लिए? लेकिन हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं, अपने मन में, हमारे मन में कोई बात हो ये तो अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी सिख समाज की हर समस्या को हल करने के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए, ये पहली बार है कि वीरवाल दिवस मनाया गया, दुनिया भर में मनाया गया। गुरु तेग बहादुर साहब को, जिनको हमने अभी याद किया है, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, तो उनका जहाँ उनको बलिदान करने का आदेश दिया, उसको हत्या करने का आदेश औरंगजेब ने दिया, वही उनका जन्मदिन मनाया गया लाल किले पे। गुरु नानक देव साहब का 550 साला, गुरु गोबिंद सिंह साहब का 350 साला पूरे विश्व में मनाया गया। तो कोई भी, क्योंकि वो आप इस धर्म में आस्था रखते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते हमारे प्रधानमंत्री जी। यहाँ तो और भी खुशी की बात है कि मनोहर लाल खट्टर जी तो आप ही बाबा बंदा सिंह बहादुर के परिवार से हैं, उनके ख़ानदान से हैं। तो यहाँ तो सिख धर्म को किसी किस्म की समस्या नहीं, हाँ समस्याएं हुई हैं। उसके लिए 1984 राइट्स के जो लोगों का नुकसान हुआ, उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं और सरकारों को भी लिखा है कि उनको जल्दी से जल्दी इंसाफ दिया जाए और 15 जनवरी को हमें इसके बारे में रिपोर्ट दी जाए। ऐसा है कि भारत में हर नागरिक के लिए 225 योजनाएं हैं, तो जिसमें हर आदमी, आप भी यहाँ किसान सम्मान निधि मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी है, हमारा सीखो और कमाओ, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में ना की हो। तो लेकिन इसके अलावा 15 स्कीमें और हैं मिनॉरिटीज़ के लिए। तो लेकिन 225 में कहीं नहीं लिखा गया कि ये स्कीम मिनॉरिटीज़ के लिए नहीं है। तो लेकिन एक प्रॉब्लम है सभी लोगों के लिए हमारे, एक तो ये कि हमें 225 स्कीमों के बारे में पता ही नहीं है। ये स्कीमें घर घर कैसे पहुँचे, इसके लिए हम जहाँ भी जाते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बेनती करते हैं, धर्म स्थानों को बेनती करते हैं, NGOs को बेनती करते हैं कि भैया इनके बारे में सब लोगों को बताओ, जिससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा लिया जा सके। और लोग कारोबार नहीं करते, नौजवान देश छोड़ के बाहर को भाग रहे हैं। यहाँ उनके लिए सरकार की तरफ से जितना पैसा मिल रहा है, जितने साधन बने हैं, उनको यूज़ करो और इसी देश को सुंदर बनाओ। विक्रम जी से बात करेंगे। विक्रम जी, आपने जो इतना बड़ा पंजाबी जगह एड्डा बड़ा पराला जिहड़ा तुसीं कीता है, टोहाना जैसे शहर तुहाडी मातृभूमि है, सरदार साहब की याद में आपने गुरुओं को याद करके एक ऐसा ऐतिहासिक गुरुद्वारा बनाने की मन में सोच जो आपके जगी है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों से कुछ? पहले तो मैं सबसे ज़्यादा इनका आभारी हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पहुँचे हैं। इनसे जो मेरे को एडवाइस मिली है और आगे मिलती रहेगी, उसी पे चलेंगे और इस गुरुद्वारे को आगे बढ़ाएंगे।
गुरुद्वारे की बात करूँ तो गुरुद्वारे में जिस तरह सरदार साहब ने कहा कि इतने बड़ा गुरुद्वारा शायद हरियाणा में एक अलग मैं समझूँ कि स्थान रखेगा, तो उसमें बहुत बड़े चरण पड़ेंगे। मगर जानना ये चाहता हूँ कि आपके मन में ये एकदम से कैसे आया? मेरे मन में एकदम से नहीं आया जी। यहाँ पे मेरे पिताजी कर्नल भीम सिंह जी का क्रिमेशन हुआ था जी। तब से मैंने सोचा था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे करूँगा। तो जब ये सड़क निकली तो इससे बेटर जगह क्या थी और इससे बेटर मैं कर क्या सकता था। तो यानी कि ये जो है सरदार साहब को समर्पित मैं है हाँ जी, उनकी यादगार में समर्पित है। और इसीलिए मैंने एक ये फाउंडेशन भी चलाई है, कर्नल भीम सिंह फाउंडेशन। वो भी सोशल काम करती रहेगी और इनकी मदद लेके चलती रहेगी। अभी तो मैं ड्रग पे फोकस कर रहा हूँ, जो कि पंजाब में आ चुका है बहुत ज़्यादा। आप बॉर्डर पे हो जी सर। तो किसी तरह का उसको रोका जाए, यहाँ पे फोकस है अभी। आज पूरे शहर के लोग जो आपके फादर साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, आपके साथ खड़े हुए हैं, आप इन शहर के लोगों के हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ जी, हर किस्म की मदद करो, नशा रोको।